اسلام آباد پولیس پرویز الہی کو ظہور الہی روڈ سے گرفتار کر کے اسلام آباد لے گئی۔ پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے موقع پر سردار لطیف کھوسہ پرویز الہی کے ہمراہ تھے۔ چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رہا کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو رہا کیا تو اسلام آباد پولیس نے کینال روڈ سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا تھا کہ پرویز الہی کو نیب یا کوئی اتھارٹی اور ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، جبکہ پرویز الہی کو کسی بھی قانون کے تحت نظر بند نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ پرویز الہی پولیس افسران کے قافلے میں گھر کی جانب روانہ ہوئے تو ظہور الہی روڈ پر اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو ان کی ذاتی گاڑی سے اتار کر سفید رنگ کی گاڑی میں منتقل کیا۔ گرفتاری کے موقع پر سردار لطیف کھوسہ پرویز الہی کے ہمراہ تھے۔ اسلام آباد پولیس پرویز الہی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر لاہور سے لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں، مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے حکومت نے پیٹرول پریکٹس 9% بڑھا دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ پہلی بار 300 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئے۔ مہنگائی کی دلدل میں پھنسے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ حکومت نے ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 9% بڑھا دی گئی، جس سے پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ اوگرا ذرائع کے مطابق PDL کی شرح 55 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ تاہم ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی شرح 50 روپے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ دوسری جانب ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 300 روپے سے تجاوز کر گئی۔ اب موٹر سائیکل یا گاڑی کا پہیہ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ عوام کہتے ہیں حکومت کو شاید فرصت ہی نہیں کہ عام آدمی کے مسائل پر سوچے۔ عوام کو کسی نہ کسی طرح ریلیف ملنا چاہیے۔ ظلم ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ، اتنی زیادہ انکم نہیں ہے جتنے زیادہ بل آ رہے ہیں، پیٹرول کا قیمتیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی، خاص طور پہ جو غریب آدمی ہیں، مڈل لوگ ہیں، جو مڈل طبقہ ہے، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ حکومت کو اس کے حوالے سے جو ہے نا کچھ کرنا چاہیے۔ بہت آوازار ہو رہا ہے، یقین منو کہ روٹی نہیں پوری ہو رہی، تیل ودائی جا رہے ہیں، بہت پریشان ہوئے ہیں۔ بل تہاڈے سامنے گھر دے نے کرائے تے رہی دا، غریب لوگ ہیں، رینٹ دی گڈی چلا رہے ہیں، نہیں گزارا ہو رہا ہے، بہت پریشان۔ پیٹرول 15 روپیے رات کو مہنگا کیا ہے، انہوں آٹا 2700 روپیہ میں ہو گیا، کیا کرے غریب آدمی۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں براہ راست اضافہ ہوگا، اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں مزید تیزی آئے گی۔ عوام کو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10 سے 15% اضافہ کیا گیا۔ ایک ماہ کے دوران دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے سے عوام چکرا کر رہ گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلویز کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 10 سے 15% تک اضافہ کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 5800 سے بڑھا کر 6100 روپے کر دیا گیا۔ راولپنڈی کا کرایہ 2000 روپے، کوئٹہ کا کرایہ 4200 سے بڑھا کر 4400 روپے کر دیا گیا۔ مری کا کرایہ 2200 سے بڑھا کر 2400 روپے کر دیا گیا۔ پشاور کا کرایہ 2200 سے بڑھ کر 2500 روپے ہو گیا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے، ورنہ گاڑیاں بند کرنی پڑ جاتی۔ ریلوے نے تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ریلوے انتظامیہ نے تمام میل ایکسپریس، پیسنجر اور انٹرسٹی ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافہ کیا۔ ذرائع کے مطابق 16 روز میں ریلوے کے کرایوں میں دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی ہوشربا قیمت نے رکشہ ڈرائیورز کی چیخیں نکلوا دی۔ رکشہ ڈرائیورز کی دہائی، کہتے ہیں اس مہنگائی میں گزارا کرنا اب ہمارے بس میں نہیں۔ ٹریفک پولیس کے چالانوں سے بھی تنگ آ چکے۔ سامعہ سعید کی رپورٹ۔ پیٹرول کی نئی قیمت نے رکشہ ڈرائیورز کا جینا مشکل کر دیا۔ رکشہ ڈرائیورز مہنگائی سے شدید پریشان۔ بھاٹی چوک میں رکشہ ڈرائیورز بے بسی کی تصویر بنے سواریوں کا انتظار کرتے رہے۔ ملک کی تاریخ میں پیٹرول کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ایک طرف پیٹرول انتہائی مہنگا ہو چکا ہے تو دوسری جانب ٹریفک پولیس چالان کر دیتی ہے۔ گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کرایہ بڑھائیں تو سواریاں زائد پیسے دینے پر تیار نہیں ہوتی۔ مہنگائی ہوئی جا رہی ہے، سواری کرایہ دیندی نہیں ہے، پہلے نالوں بھی 10 روپے گھٹ دیندی، سواری کہیں نہ بہو بہندی نہیں ہے، سواری کہندی کہ اسی نہیں بہ سکتے۔ خالی رشکا پیا صبح 200 روپیہ نے پڑا تو 300 روپیہ تیل پلو پوا لیا ہے، دسو کہڑے پاس جا رہی ہے۔ سواری کو 10 روپے کرایہ مت مانگ لیے تو سواری گل پی جاتی ہے۔ حکومت ایڈی ساڑی ہے وا
ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਾਲਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਹੀ ਖਲੋਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਟਾਂ ਨਾਲ ही भाजी। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब को रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाए जाएं। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोहे के ताजर भी तंग आ गए। मिस्री शाह मार्केट के ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मरकजी आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन मिस्री शाह का हंगामी इजलास में डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के भारी बिलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। लोहा मार्केट के ताजिर व सनतकारों ने 2 सितंबर हफ्ता को हड़ताल का ऐलान किया। मरकजी सदर आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन चौधरी आमिर सिद्दीक का कहना था कि महंगे डॉलर ने स्टील सेक्टर को तबाह कर दिया। स्टील मिलों को करोड़ों रुपए का बिल आता है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट नुकसान का बायस बन रहा है। हफ्ते को महंगाई के खिलाफ हड़ताल करेंगे। हम अपने वो तमाम तंजीमें जिन्होंने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है, हम उनके शाना बशाना साथ खड़े हैं और हम उनके बिल्कुल, चूँकि ये उन्होंने एक अच्छाई के लिए ये आवाज़ बुलंद की है, ये उन्होंने लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का एक दर्द महसूस करते हुए हड़ताल की कॉल दी है। तो ये तो एक दिन उन्होंने कॉल दी है, अगर वो हमें जितने दिन भी कहें हड़ताल करनी, चाहे इसमें जितना भी हमारा नुकसान हो, हम अपने उन भाइयों का साथ देंगे। सीनियर नायब सदर मिस्री शाह आयरन मार्केट हाफिज अब्दुल बासित, शेख यूसुफ, इनाम भट्ट, मोहम्मद जमील, महबूब सुलहरी समेत दीगर ताजिर भी इजलास में शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया। एलपीजी भी महंगी होगी। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 201 रुपये से बढ़कर 240 रुपये 12 पैसे हो गई। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिए। बिल्कुल वही हुआ है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। 38.97 रुपये, तकरीबन 39 रुपये जो है कीमत बढ़ा दी गई है। बहुत शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों को कहना था कि एलपीजी बम भी गिरा दिया गया पेट्रोलियम के बाद। शहरियों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, नहीं कि ज़ुबानी बताइएगा सर क्या सूरत हाल है बाज़ार की और किस तरह से देख रहे हैं आप महंगाई के जो बम गिराया गया है वहाँ पर? सर बहुत मुश्किल है, जो गरीब बंदा ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि दिहाड़ीदार बंदा जो है ना बहुत तंग हो रहा है। घर का सिस्टम नहीं चल सकता जो दिहाड़ीदार बंदा है। तो अब पाकिस्तान के हालात समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या करे, गरीब बंदा किस तरफ जाए, अपने घर का कैसे सिस्टम चलाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इस महंगाई के दौर में मुश्किल होता जा रहा गुजारा करने को। और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, 38 रुपये मतलब 39 रुपये तकरीबन गैस की एलपीजी कीमत बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे इस मौजू पर? देखो जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम तो आगे ही गरीब आदमी हो चुके हैं, बिल्कुल रोटी से भी तंग हो चुके हैं। और लिहाजा भी इस तरह ये थोड़ी बहुत ही गैस है, घर का चूल्हा ये भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि घर का चूल्हा जलना भी जो है मुश्किल हो चुका है। जहाँ पर महंगाई ने बाकी चीज़ों को मुश्किल किया, वहाँ पर घर का चूल्हा जलाना, खाना पकाना भी जो है महाल कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को एक ऐसा इक़दाम उठाएगी और कोशिश की जाए कि अवाम को जो है रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया मोबिन। मौसम सरमा की आमद से पहले चीनी मार्केट से गायब होना शुरू। शहर में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। सट्टाबाज चीनी ज़ख़ीरा करने में बाजी ले गए। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर के कई इलाकों से चीनी गायब होना शुरू हो गई। मुतादिद इलाकों में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी की मंजूरी से ज़ख़ीरा अंदोज मुतहरिक बाजारों में चीनी की किल्लत ने सर उठा लिया। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक चीनी की माहाना खपत 0.65 मिलियन टन रही। चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक इसकी पैदावारी लागत में इजाफे से है। डॉलर की कीमत में इंतहाई इजाफा और स्मगलिंग की वजह से भी चीनी महंगी हुई। चीनी की स्मगलिंग से बचने के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत करना जरूरी है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए महकमे की कानूनी जंग पर नजर है। सट्टाबाज और प्राइवेट माफिया चीनी महंगी करके आम शहरियों की जेबों से 48 अरब रुपए बटोर चुका है। मुल्क में महंगाई लेकिन हुकूमत की शाह खर्चियाँ। गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। देसी घी, बादाम, शहद से तवाज़ो होगी। गवर्नर हाउस लाहौर के लिए 10 किलो देसी घी, 20 किलो गिरी बादाम, 5 किलो छवारे की ख़रीदारी का टेंडर जारी। 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 20 किलो चीज़,
10 किलो बादियान खताई, 150 बोटल्स काफ़ी जार समेत दीगर खाने पीने की अशिया के लिए टेंडर जारी किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर के ज़ेर इस्तेमाल टोयोटा, सुजुकी और दीगर गाड़ियों के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सामान के लिए 10 लाख के टेंडर जारी कर दिए गए। गवर्नर हाउस इंतज़ामिया ने टेंडर की तफसीलात पेपरा वेबसाइट पर शाये कर दी। और अब आपको बताएं, एशिया कप मैचेस के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। कल दोनों टीमें किजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 सितंबर को किजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच शेड्यूल है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाह कीजिए। उसामा से इस हवाले से अपडेट लेंगे। एशिया कप मैचेस के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई हैं। ये मनाजर भी देख सकते हैं, खिलाड़ियों का जोश व खरोश आपके सामने है। खिलाड़ी खुश नज़र आए हैं और आपको ये भी बताएं कि शायकीन के लिए खुशखबरी है कि गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। एशिया कप की गहमा गहमी के लिए गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। दोनों टीमों को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। मोहम्मद उसामा से राबता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी उसामा। तकनीकी बुनियादों पर मोहम्मद उसामा से एक मरतबा फिर राबता मुनक़ता हुआ है। एशिया कप मैचेस के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई हैं। दोनों टीमों को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। कल दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का मैच शेड्यूल है। आपको ये भी बताएं कि अफ़गानिस्तान की टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन किया है और अब 2 मज़ीद टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। एशिया कप मैचेस के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। कल दोनों टीमें किजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा एक्साइज का आवाम के लिए एक और सहूलत का ऐलान। शहरी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डुप्लीकेट की फ़ीस जमा करा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने अपने MVRS सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड सिस्टम में नई सहूलियात का ऑप्शन भी आवाम के लिए मुहैया कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। ने अपना MVR सिस्टम को जो है वो अपग्रेड कर दिया, जिसके बाद नई ऐप जो है, नई सहूलियात जो हैं वो उसमें शामिल हो गई हैं और अब शहरी जो है वो घर बैठे अपनी किसी भी नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। जबकि डुप्लीकेट फ़ीस जिसमें जो है वो आपके स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स की जो फीस है वो भी जो है वो जमा करवा सकेंगे। इससे पहले ये ऑप्शन जो है वो नहीं थी। अब शहरी जो है उनको महकमा एक्साइज के किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो फीस ऑनलाइन जमा करवाने के बाद बजरिया कोरियर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स महकमा एक्साइज के दफातर भिजवा सकेंगे और उनके बाद उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। जबकि डुप्लीकेट फीस अदा करने के बाद उनके नंबर प्लेट या जो स्मार्ट कार्ड है उनके घरों पर पहुँच जाएंगे। ये एक बड़ी सहूलत है जो महकमा एक्साइज की जानिब से दी गई है। इससे कबल ई-पे के जरिए जो है वो टोकन टैक्स जमा करवाने की जो है वो सहूलत फराहम की गई थी, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो ई-पे के जरिए जमा करवाया जा रहा था। और अब MVRS सिस्टम को जो है वो अपग्रेड कर दिया गया, जिसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो भी अब ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी। जी आपका बहुत शुक्रिया राहिल। गुलशन इकबाल के इलाके उमर ब्लॉक में शहरी मोहम्मद रियाज की गाड़ी के टायर चोरी हो गए हैं। वारदात की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज़ को वसूल हो गई है और फुटेज में चोरों को गाड़ी के टायर उतारते और ले जाते देखा जा सकता है। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जानते हैं। जी मुदस्सिर। शहर में दिगर चोरी की वाक़यात के साथ शहरियों की गाड़ियों के जो टायर हैं वो भी चोरी होने लगे हैं। पहले जो है वो गाड़ियों के शीशे चोरी होते थे, उसके बाद जो है टायरों की जो वारदातें हैं वो भी सामने आने लगी हैं। थाना गुलशन इकबाल के इलाके में उमर ब्लॉक में शहरी मोहम्मद रजा के रियाज की गाड़ी के टायर चोरी हो गया। ब्लैक रंग की गाड़ी में सवार नामलूम अफराद जो कि एक लग्जरी गाड़ी होंडा स्विफ्ट गाड़ी में आते हैं और बड़ी तेजी से जो है वो गली में खड़ी गाड़ी के जो है वो टायर उतारते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात की फुटेज भी सामने आ गया। फुटेज में चोरों को गाड़ी के टायर उतारते और ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। सारा गुलशन इकबाल पुलिस ने फिलहाल यही कार्रवाई की है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है और ताहल पुलिस जो है वो चोरों का सुराग नहीं लगा सकी है कि चोर कौन से, कहाँ से आए और कहाँ फरार हो गए। हालांकि फुटेज में जो है वो वाज़ेह तौर पर चोरों को टायर उतारते हुए और फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो शहर में
जो गाड़ी चोरी के साथ साथ गाड़ी के जो टायर चोरी होने के वाकयात में भी इजाफा होता जा रहा है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है कि हम जो है वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें कि जो कीमती गाड़ियों के जो टायर हैं वो भी अब जो है वो चोरी होने लगे हैं। खासतौर पर जो चोर हैं वो भी लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, कीमती गाड़ियों में आते हैं और अब आसानी जो है वो टायर अपनी कार की डिग्गी में रखते हैं, उतारने के बाद चोरी करने के बाद और फरार हो जाते हैं। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर का एक और SHO मनशियात फरोशों का सहूलतकार निकला। 3 करोड़ रुपए लेकर मनशियात की कम मिकदार की FIR दर्ज करने पर SHO पर ज़मीनों पर कब्जा करने के मुकदमात भी दर्ज हैं। मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। जराइम की रोकथाम के जिम्मेदार खुद ही जराइम में मुलविस निकले। थाना शाहदरा के SHO सखीर मेतला ने 3 करोड़ रुपए रिश्वत ली। CCPO की इंक्वायरी टीम में शामिल होने के बजाय SHO फरार हो गया। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापे मारने में मसरूफ है। CCPO लाहौर ने SHO शाहदरा की करप्शन पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा है। DIG ऑपरेशंस ने SHO शाहदरा को मुअत्तल कर दिया। SHO का कार खास मुस्तफ़ा भी मामले में मुलविस और मंजर से गायब हो चुका है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि मनशियात जैसा मकरूह धंधा करने वाले पुलिस अफसरान की महकमे में कोई जगह नहीं है। सब इंस्पेक्टर सगीर मेतला के बारे में मालूम हुआ है कि थाना हरबंसपुरा में इसके खिलाफ जमीनों पर कब्जा करवाने का मुकदमा भी दर्ज है। थाना सब्जाजार में भी सगीर मेतला पर शहरी को उसके घर में घुसकर तशद्दुद और हब्से बेशा में रखने का मुकदमा रिकॉर्ड पर है। ज़राए से मालूम हुआ है कि साबिक DIG अफजाल कौसर ने एक इंक्वायरी में इसको सजा के तौर पर ASI कर दिया था। उनके तब्दील होने के बाद CCPO लाहौर ने इसकी सजा मुआफ करके सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर बहाल कर दिया और मौजूदा DIG ऑपरेशंस ने A+ थाना शाहदरा में SHO लगा दिया था। SHO सगीर मेहता पुलिस में नौकरी के साथ साथ एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्टनर भी है और कुछ पुलिस अफसरान ने भी इसकी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी कर रखी है। मनशियात के गैर मुल्की स्मगलर्स का 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिमान मुख्तलिफ तालीमी इदारों और निजी होटल्स में भी मनशियात सप्लाई करते थे। SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी की अपने दफ्तर गालिब मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने बताया कि पुलिस ने 5 रुकनी मुनज़्ज़म मंशियात फरोश गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में 2 गैर मुल्की मुलजिमान भी शामिल हैं। मुलजिमान से अब तक 54 लाख से ज़ायद मलकियत की मंशियात बरामद की गई है। मुलजिमान मुख्तलिफ तालीमी इदारों और निजी होटल्स में भी मंशियात सप्लाई करते थे। ये मंशियात फरोश हमारे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और यूनिवर्सिटीज़ में ये मंशियात सप्लाई का काम कर रहे थे। इनके फ़ोन से लाहौर के जो है मुख्तलिफ जैसे कि DHA, बैरिया टाउन और बहुत सारे इलाकों के जो है वो लोग जो ख़रीदार हैं उनके नामों के इंकशाफ हुए हैं और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स में भी जो है ये मंशियात फरोशी का काम कर रहे थे। डॉक्टर अमारा शराजी का मजीद कहना था गिरोह के करिंदे मुख्तलिफ ज़राए से मंशियात लाहौर मंगवाते थे। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा, लार्वे की अफजाइश भी जारी है। तिबी माहिरीन कहते हैं शहरी डेंगू ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करें। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 68 जबकि लाहौर में 35 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान का कहना है कि रवां साल लाहौर में डेंगू के 469 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज 35 नए मरीज सामने आए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला कहते हैं आइंदा 3 माह में डेंगू मरीजों में इजाफे का इम्कान है, एहतियात की जरूरत है। खासतौर पे बच्चों को, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी का शिकार हैं, उनके लिए खास एहतियात है। फुल आस्तीन के कपड़े पहने, शाम को आप दरवाजे बंद रखें, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। स्कूलों की भी हमने हदायत जारी कर दी हैं, तो तमाम शहरी जो हैं वो कम अज़ कम अपने घर को ज़रूर साफ रखें। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 116 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 55 मरीज दाखिल हैं। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। निगरान सूबाई वज़रा सेहत डॉक्टर जवेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब के निजी अस्पतालों में आंखों के इलाज को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करके यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऑडिट करवाया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़रा सेहत डॉक्टर जवेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद यूनस, DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास गोंदल और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर जवेद अकरम ने कहा कि पंजाब भर में डेंगू से कोई हलाकत नहीं हुई। प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव का डेंगू बुखार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में सेहत कार्ड बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में माजी में बहुत करप्शन हुई। सेहत सहूलत कार्ड हम समझते हैं कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो पिछली 2 हुकूमतों का रहा।
जब पहले हुकूमत ने आई और फिर इसको यूनिवर्सल बना दिया गया कि ये कि अमीर गरीब सबके लिए बना दिया गया। जब हम आए तो 145 अरब रुपया देना था हमने स्टेट लाइफ का, जो दिया 1 साल का, तो ये बहुत एक्सपेंसिव एक था। इसको हमने रैशनलाइज करने की कोशिश की और इसकी क्वालिटी बेहतर करने की। एब्सोल्युटली 100% अभी भी इस वक्त भी इससे इलाज हो रहा है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि पंजाब भर में अब तक डेंगू के 1267 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक जो पूरे पंजाब में केस हुए हैं वो 1267 के करीब कंफर्म केस हुए हैं और लास्ट 24 घंटे में 116 पेशेंट जो हैं वो दाखिल हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे टीम ने पूरे पंजाब में एक दिन के अंदर घरों को चेक किया है वो 3,99,679 और जो आउटडोर किया है वो 1,04,315 और जो हमारी टीमों ने एक दिन के अंदर जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें जो लार्वा डिटेक्ट किया है वो 3,309। सूबाई वज़रा का कहना था कि जदीद रिसर्च के मुताबिक डेंगू के दौरान मरीज को मुसलसल ड्रिप्स लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।